What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Monday, 25th of May, and finally the markets have given a close about 24,000 levels. And tomorrow is Nifty's monthly expiry, and कल के monthly expiry के लिए most probably 24,000 will be acting as some sort of a magnet around which Nifty will be volatile. जस्ट कल की वीडियो में हमने डिस्कस कर रहे थे कि हाउ इन स्पाइट ऑफ ओपनिंग गैप डाउन और अ गैप अप, निफ्टी इज कंसिस्टेंटली गिविंग अ क्लोज समवेयर बिटवीन 23,600 and 23,700, एंड वी ऑल्सो डिस्कस दैट देर इज अ वेरी हाई लाइकलीहुड दैट निफ्टी विल अगेन डू अ रेंज शिफ्ट अबाउट 24,000 लेवल्स, एंड आज ही मार्केट्स ने 24,000 के ऊपर एक क्लोज दे चुका है. एंड इफ यू कैन वॉच ऑन द चार्ट्स, देर वॉज अ क्रेजी अमाउंट ऑफ ओवरनाइट क्रश. 280 के आसपास क्लोज जो हुआ था, 220 के आसपास आज ओपन हुआ, विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट सिंस द वॉर हैज स्टार्टेड. एंड आज जो स्ट्रैडल प्राइस है जो क्लोज हो रहा है 165 के आसपास क्लोज हो रहा है. अगेन दिस इज ऑल्सो द लोएस्ट सिंस द वॉर हैज स्टार्टेड. एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट टुमारो इज अ मंथली एक्सपायरी, whether this kind of a premium is actually sustainable and whether this is actually a proper pricing of risk or it's massively underpriced, tomorrow's price action has to tell. And today the India VIX also started to trade below 17 levels, and there has been a lot of volatility crush even in the far dated options, and all this is happening on the back of the good news that is coming from the geopolitical front, where US is saying that they are expecting good news in a few hours, and there might be some terms, there might be some truce that might be negotiated. And even crude oil is down almost 13% from the recent highs, and even natural gas is down. So looks like the war is about to end, but again nobody can predict what Trump's gonna do tomorrow. But as of now volatility seems to be shrinking, and जो days का range है वो narrow होते होते नज़र आ रहा है. Friday के दिन भी हमने discuss किए थे कि how it was a narrow range kind of a day, and even today the market stayed in a small 60 to 70 point range for the majority part of the day. Only after 2:30 we saw some sort of a breakout about 24,000 levels. So if market comes back into the lower volatility regime, then yes, whatever the premiums that are trading, that makes sense. But again फिर से एक और बार negative news आ जाता है, then again the option writers are gonna get trapped, short vol traders are gonna get trapped. So let's get to the terminal and let's plan for tomorrow's monthly expiry. So या डेली चार्ट पे अगर बात करेंगे तो डेली चार्ट पे बात करने से पहले आई वांटेड टू एड्रेस अ फ्यू थिंग्स. सम कमेंट्स दैट वी आर गेटिंग दैट it's not giving them any tangible benefits. Of course, because now we are working in a ridiculously stringent regulatory framework. तो जो हम बोलना चाहते हैं हम completely बोल नहीं सकते, जो हम दिखाना चाहते हैं हम completely दिखा नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ हम डिस्कस नहीं कर सकते. तो बहुत ही ज़्यादा stringent regulations में हम लोग काम कर रहे हैं. If you go back to my personal YouTube channel, I was the guy who was putting out every day daily live trading videos for 3 years constantly. And वहाँ पे मैं मेरे लाइव पोजीशंस को दिखाया था, एडजस्टमेंट्स दिखाया, मेरे मार्क टू मार्केट स्विंग्स को दिखाया, मेरे इमोशंस को दिखाया. बट नाउ इन द करेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट वी आर बाउंड टू say only those things which are allowed by the regulations. And but this is what the regulations allow, and we are working within those parameters. And the next thing is people say that like I don't predict. Of course, as a trader you don't need to predict. ठीक है, the moment you start predicting you are not trading. Most of the trading is reactionary in nature. That's why हमने क्या करते हैं, हम 3-4 सिनेरियोस बना के चलते हैं कि अगर गैप अप होके इधर मार्केट हिट करता है तो ये करेंगे, फ्लैट खुला तो ये करेंगे, यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो ये करेंगे. 4-5 सिनेरियोस हम लोग बना के चलते हैं. ठीक है, वो जो 4-5 सिनेरियो में देता हूँ वो दैट इज़ जस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ माई माइंड. बट व्हेन आई सिट टू ट्रेड माई पोजिशंस, मैं उसके साथ और 4-5 सिनेरियो को लेके चलता हूँ, एंड दैट्स हाउ ट्रेडिंग इज डन. ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो आई कैन जस्ट come and say that I can pose myself as a geopolitical expert, and I can say that अमेरिका का ये मूव से कल मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आने वाला है या नेगेटिव सेंटिमेंट आने वाला है. एंड देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी, राइट? इधर न्यूज़ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मार्केट इधर पॉजिटिव रिएक्ट करेगी या नेगेटिव रिएक्ट करेगी. सो 50% चांस है कि मैं अगले दिन में आके मैं अपना सीना चौड़ा करके मैं ये बोल सकूँ कि हाँ मैंने कहा था. बट द थिंग इज दैट्स नॉट हाउ ट्रेडिंग इज डन. एंड
to be honest, you don't need to know whatever that's gonna happen. All you have to do is react, and all you have to do is trade in a systematic way. ठीक है? So if you have been following all the TV analysts and all those guys, you guys know that most of those guys haven't even placed more than a couple of lots in their entire lives. So अगर मैं वीडियो के लिए अगर मैं कुछ प्रेडिक्ट भी करता हूँ एंड हीरो बनने को ट्राई भी करता हूँ, दैट इज़ नॉट गोइंग टू एंड वेल फॉर माई सेल्फ, बिकॉज आई एम अ ट्रेडर फर्स्ट एंड देन वट एवर आई डू इट इज़ जस्ट ट्रेडिंग के बाहर वाला चीज़ है. अगर मैं वीडियो के लिए कुछ बोल भी देता हूँ एंड प्रेडिक्ट भी कर लेता हूँ, तो देन दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प इन माई ट्रेडिंग, बिकॉज मैं उस बायस को लेके, उस व्यू को लेके थोड़ा ज़्यादा अटैच हो जाता हूँ, ज़्यादा एडमेंट हो जाता हूँ, एंड it's not going to help in my trading. And at this point nobody knows, because at this point बहुत सारे geopolitical experts है, बहुत सारे अपने अपने views दे रहे हैं, and nobody is getting it right. So there is no point in trying to understand what's happening in the world. If you can just simply follow the price, that is more than sufficient. ठीक है? तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट्स कंटिन्यूसली लाइक हायर लेवल पे कंटिन्यूसली क्लोजिंग दे रहा है, रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट्स गोना ओपन गैप अप और गैप डाउन. सो एंड वी ऑल्सो डिस्कस दैट वापस एक रेंज शिफ्ट आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एंड आज मार्केट्स में एक रेंज शिफ्ट देखने को मिल गया है, एंड 24,000 के ऊपर एक डेली क्लोज मिल चुका है. सो पीपल हु आर ट्रेडिंग पोजिशनल, दे कैन अगेन बायस देमसेल्स टू न्यूट्रल टू बुलिश काइंड ऑफ अ ट्रेड्स को बायस कर सकते हैं. एंड कंप्लीटली बुलिश हम लोग 24,600 के ऊपर अगर एक डेली क्लोज मिलता है एंड एक फॉलोअप कैंडल मिलता है, उसके बाद ही हम लोग बुलिश बन सकते हैं कंप्लीटली. ठीक है? आज इंडिया विक्स भी 17 के नीचे ट्रेड कर रहा है, एंड देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्रश इन ऑलमोस्ट ऑल लॉन्ग टर्म ऑप्शंस, एंड ब्रॉडर बेस्ड रैली भी आ चुकी है बहुत ज़्यादा. लाइक इट्स नॉट लाइक सेक्टर स्पेसिफिक रैली, सारे सेक्टर्स एक साथ ऊपर चल रहा है. अगेन ऑल दिस इज ऑन द फैक्ट दैट यू आर गेटिंग सम पॉजिटिव न्यूज़ रिगार्डिंग द वॉर. ठीक है? तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके बात करेंगे तो लाइक वी डिस्कस दिस बिकॉज yesterday itself there was a clue saying that the markets might be continuing to hover in a small daily ranges. जो देश का जो रेंज है वो नैरो होते होते नज़र आ रहा है, एंड यू कैन नोटिस दैट फ्राइडे का रेंज ही काफ़ी छोटा था, लाइक 120 पॉइंट्स का रेंज था. आज का अगर रेंज की बात करेंगे तो लाइक मैक्सिमम पार्ट ऑफ द डे लाइक ओनली 60-70 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स के रेंज में रहा है, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है. सो दिस इज़ अ गुड साइन, बिकॉज कल 24,000 के नीचे गैप डाउन होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 25% से कम हो चुका है, बिकॉज क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट्स में एक ब्रेकआउट मिला है, 24,050 के आसपास ब्रेकआउट मिला है. एंड नाउ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस दैट द मार्केट माइट फाइंड इज समवेयर अराउंड 24,150. सो कल के लिए मेरा जो रेंज बनने वाला है कल के एक्सपायरी के लिए, दैट इज़ बिटवीन 24,000 एंड 24,150 लेवल्स. तो इस रेंज के बीच में ही मार्केट मोस्टली ट्रेड करने वाला है. एंड टू टॉक अबाउट द स्ट्रैडल, यू कैन नोटिस दैट देयर वाज अ ग्रेट लीनियर काइंड ऑफ अ क्रश, बट अगेन ये जो क्रश है वो हाइंडसाइड पे है, बिकॉज जब मैं देखा 280 से लेके ऑलमोस्ट 220-215 के आसपास ओपन हो रहा है विद सो मच ऑफ वॉलिटिलिटी क्रश, मेरे पास हिम्मत भी नहीं बचेगी टू गो एंड शॉर्ट द प्रीमियम्स, टू गो एंड शॉर्ट द वॉल, बिकॉज एक छोटा सा नेगेटिव न्यूज़ आता है तो लाइक दिस 220 रुपीज़ विल अगेन स्पाइक बैक टू 270. सो जो भी यस अभी हाइंडसाइट it's perfect, it's 10 out of 10, and hindsight के हिसाब से of course there has been a decent amount of crush, almost 50 points of crush देखने को मिला है मार्केट्स में. Let me just refresh this. So 160 के आसपास straddle close हो रहा है, and this is the lowest since the war has started, and most probably tomorrow will be opening somewhere around 120 to 130 के बीच हमारा जो straddle है open होने वाला है. and with 120 to 130 रुपीज़ of straddle, अगर हमको straddle ही ट्रेड करना है तो then हमको थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजिकली पोजिशन करना पड़ेगा, बिकॉज 24,150 के आसपास एक रेजिस्टेंस ज़रूर है, बट हमको 24,100 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो देन हम लोग यहाँ पे 24,050 एंड 24,150 इस 100 पॉइंट के रेंज में उस 24,100 का स्ट्रैडल को होल्ड कर सकते हैं. एंड जिस डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो देन वी हैव टू अप्रोप्रिएटली रोल. तो आई डोंट थिंक टुमारो 24,280 के ऊपर मार्केट्स क्लोज देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद भी मार्केट्स आर ग्राइंडिंग स्लोली टुवर्ड्स द अपसाइड. ऐसा नहीं कि एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आ गया एंड सडनली ऐसे कुछ कैंडल फॉर्म हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है, बिकॉज मार्केट्स अभी भी वेट एंड वॉच मोड में ही है. अगर मार्केट्स में इतना पॉजिटिव न्यूज़ का जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है, अगर बड़ा ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट आ जाता
then probably we should be seeing another 300 points of gap up and 24,300 के आसपास आज ही हम लोग ट्रेड कर लेनी चाहिए थी. बट यू कैन नोटिस दैट इन स्पाइट ऑफ अ गैप अप ज़्यादा सेल ऑफ भी नहीं आ रहा है. जो भी सेल ऑफ आ रहा है उसको अब्जॉर्ब हो रहा है 23,900 के आसपास एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे 24,000 के ऊपर हमने एक क्लोज दे चुका है. सो अगर मार्केट्स फ्लैट या थोड़ा बहुत 24,100 के आसपास अगर आता है, अभी थोड़ा बहुत जूम इन करना पड़ेगा हमको बिकॉज मार्केट्स का जो रेंज है वो छोटा होते जा रहा है. सो 24,000 विल बी एक्टिंग एज अ फ्लोर फॉर टुमारोज एक्सपायरी एंड एट द सेम टाइम 24,150 शुड बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ सीलिंग. बट ये रेंज में मार्केट मल्टीपल टाइम्स ऊपर नीचे जा सकता है बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ अ मंथली एक्सपायरी एंड मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट रिप्राइजिंग ऑफ वॉल्स. जो वॉल्स अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहे थे आज काफ़ी ज़्यादा क्रश आ चुका है एंड कल थोड़ा बहुत पोजीशंस मूव होंगे, पोजीशंस रोल होंगे, उसका थोड़ा इफेक्ट रहने वाला है. सो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मार्केट्स का रेंज कम है, प्रीमियम्स भी उसके हिसाब से प्राइसिंग कर रहा है. सो इट्स नॉट गोना बी एन ईजी एक्सपायरी बट एट द सेम टाइम जो रेंज काफ़ी थोड़ा कम हो रहा है ना, तो देन देर इज़ अ वेरी हाई लाइकलीहुड फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली रेस्पेक्ट द प्राइस एक्शन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम 24,000 पे आया, मार्केट नीचे आया, सेकंड टाइम आया वापस नीचे आया, थर्ड टाइम आया थोड़ा बहुत नीचे आया एंड देन फोर्थ टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट मिला होगा. तो हमने डिस्कस किया था कि 24,000 के आसपास हमको एक शॉर्ट करना है. तो अगर हम लोग 1:1, 1:1.5 तक भी मतलब प्राइस आया होगा आपके फेवर में. बट ओके वापस अगर मार्केट आ गया तो मोस्ट प्रोबेबली इतना अच्छा TTD था यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बावजूद भी लाइक प्रोबेबली वुड हैव एग्जिटेड कॉस्ट टू कॉस्ट. ठीक है, तो तीन सिनेरियो है. अगर मार्केट्स 24,000 एंड 24,050 के बीच अगर ओपन होगा एंड फर्स्ट 15 मिनट्स में ब्रेकआउट देगा देन वी शुड बी ट्रेडिंग फॉर द ब्रेकआउट एंड टारगेट 124,150 तक हम लोग टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं. एंड यहाँ पे अगर हम लोग 24,030, 24,040 के आसपास हम लोग एंट्री लेते भी तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 24,000 के आसपास होना चाहिए. बट अगर आपको स्टॉप लॉस मतलब इफ़ यू कांट हैंडल द मार्क टू मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड इफ़ यू फील दैट मेरा स्टॉप लॉस को हिट करके वापस जाएगा तो देन प्रोबेबली अ क्रेडिट स्प्रेड, अ पुट क्रेडिट स्प्रेड वुड बी अ बेटर ऑप्शन हियर. एंड जब तक मार्केट इसके नीचे 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज नहीं देता उसी पुट क्रेडिट स्प्रेड को हम लोग होल्ड कर सकते हैं. एंड जैसे मार्केट इसके नीचे 15 मिनट्स का क्लोज देगा देन वी कैन ऐड 24,000 कॉल्स एंड मेक इट लुक लाइक अ 24,000 आयरन फ्लाई और अ स्ट्रैडल और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, अगर मार्केट 24,000 के नीचे अगर ओपन हो जाता है तो देन वेट फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स. तो फर्स्ट 15 मिनट्स के बाद भी मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, आई मीन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, देन 24,050 का जो लेवल है इट विल बी सॉलिडिफाइड एज सम सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस फॉर द एक्सपायरी एंड मार्केट्स 23,900 एंड 24,000 के बीच में डिली डली करेगा एंड 24,000 के आसपास अट्रैक्ट होने वाला है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सपायरी. ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है तो देन हमारा जो एक रेंज शिफ्ट सिनेरियो है वापस आ जाएगा. सो बेसिकली 24,170, 24,180 के आसपास फिर से मार्केट रेजिस्टेंस हिट करेगा. बट 2400 का स्ट्रैडल को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एज लॉन्ग एज वी गेट दैट स्ट्रैडल अबव 110 रुपीज़. बिकॉज अगर 110 रुपीज़ का हम लोग स्ट्रैडल लेके चल रहे हैं तो वी नीड एटलीस्ट 70-80 पॉइंट्स कवरेज ऑन द अपसाइड एंड 70-80 पॉइंट्स कवरेज ऑन द डाउन साइड. एंड इन स्पाइट ऑफ गेटिंग अ डिसेंट स्ट्रैडल एंड ऑल्सो हैविंग लाइक डिसेंट रेंज टू ट्रेड, trading this 110 point ka straddle is not easy because at one point call option will be trading at 20 and put option will be trading at 90 and suddenly when the market goes into the upside like call option will be trading at 75 and put option will be trading at like 15 or something. So it's not easy to handle the mark to market swings but you get a good price action point to hold that particular straddle. सो अगर कल मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाता है लेट्स से बिकॉज ऑफ पॉजिटिव न्यूज़, मार्केट अगर 24,200, 24,300 के आसपास अगर खुल जाता है तो देन ऑल दीज प्राइस एक्शन पॉइंट्स बिकम्स इनवैलिड बिकॉज मार्केट्स न्यूज़ के बेसिस पे चलना शुरू कर देता है. तो इन दिस सिचुएशन ईदर इन द केस ऑफ बिग गैप अप और इन द केस ऑफ बिग गैप डाउन विल वेट फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ इनिशियल बैलेंस. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर ये जो कैंडल है 150 पॉइंट्स या उससे बड़ा है तो देन विल ट्रेड द मीन रिवर्शन. सो बेसिकली मार्केट्स यहाँ पे मीन रिवर्ट करना चाहिए या यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन में जाना चाहिए बिकॉज फर्स्ट 5-10 मिनट्स में ही अगर 150 पॉइंट्स मूव कर लेता है तो. बट अगर ये जो फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल सिर्फ 50 पॉइंट्स से 60 पॉइंट्स का कैंडल है तो देन विल वेट फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन एंड देन ट्रेड दैट पर्टिकुलर ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन यूजिंग डेबिट रेशियोस यूज करके भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं या क्रेडिट स्प्रेड्स यूज करके भी ट्रेड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हेन दिस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हैपन्स एंड एट दैट पॉइंट व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ द वॉल्स. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस मंथली एक्सपायरी है 2 o'clock के बाद बहुत ज़्यादा गामा स्पाइक्स रहने वाला है, ऊपर नीचे आगे पीछे रहने वाला है बिकॉज इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द मार्केट
market's gonna open, irrespective of where the straddle's gonna open. Finally 2 o'clock के आसपास straddle आके आपको मिलने वाला है 40 रुपए पे, 40 से 50 रुपए के बीच में मिलने वाला है, 20 रुपये कॉल एंड 20 रुपये पुट. एंड इवन इफ द मार्केट मूव्स 40 पॉइंट्स अपसाइड, 40 पॉइंट्स डाउनसाइड, अगेन 40 पॉइंट्स अपसाइड, तो आपका जो स्टॉप लॉस ऐसे 100% हिट होने वाला है एंड रिवर्ट भी होने वाला है. एंड देन अगेन सिंस दिस हैज़ बीन द केस ओवर द लास्ट 2 or 3 months वेयर 2 o'clock के बाद जो मूव्स हैं दे आर मच हायर देन वॉट द प्रीमियम्स आर प्राइसिंग इन. ठीक है, सो ट्रेड अकॉर्डिंगली, साइज अकॉर्डिंगली. एंड आज का वीडियो आई नो लिटिल बिट लंबा हो गया, बट या I wish you guys a good monthly expiry tomorrow. I'll see you after again tomorrow's monthly expiry. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.